ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سیاسی طور پہ متحرک ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتحادیوں سے رابطے مزید تیز کر دیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی شہر کراچی آمد۔ وزیر اعظم عمران خان سے MQM پاکستان کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اربن ڈیولپمنٹ پلان سمیت کراچی ترقیاتی پیکج میں پیش رفت سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم بولے کہ اسد عمر MQM اور کراچی کے مسائل پر بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے سندھ حکومت سے زیادہ کراچی کو اون کیا۔ کراچی کو گرین لائن پروجیکٹ بھی ہم نے دیا۔ مردم شماری پر بھی تحفظات کو حل کیا۔ MQM پاکستان کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM کے کئی مسائل بدستور حل طلب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے MQM کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اربن ڈیولپمنٹ پلان سمیت کراچی ترقیاتی پیکج میں پیش رفت سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان بولے کہ اسد عمر MQM اور شہر کراچی کے مسائل پر بات کرتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سندھ حکومت سے زیادہ شہر کراچی کو اون کیا ہے۔ کراچی کو گرین لائن بس منصوبہ بھی ہم نے دیا۔ مردم شماری پر بھی تحفظات ہم نے ہی حل کیے۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM کے کئی مسائل بدستور حل طلب ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ کراچی۔ وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر نیشنل اسٹیڈیم میں لینڈ ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ میڈیا ورکرز کو مرکز سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان MQM پاکستان کے مرکز بہادرآباد گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اور MQM پاکستان کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جلد ناکام ہوگی۔ اسلام آباد کا دھرنا بھی جلد ختم ہوگا۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں۔ جبکہ MQM پاکستان کی قیادت نے اپنے مطالبات وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھے، جس میں سے ایک مطالبہ MQM پاکستان کے دفاتر کھولنے کا تھا، جس پر وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ اس اہم ملاقات میں MQM کا کوئی رکن سندھ اسمبلی شامل نہیں تھا، جبکہ خواجہ اظہار الحسن کو بھی داخلے سے روک دیا گیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اسد عمر، وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی موجود تھے۔ ملاقات کے کچھ دیر بعد حیدرآباد میں MQM کا زونل آفس کھول دیا گیا۔ شہر کراچی میں قبضہ مافیا ایک مرتبہ پھر سے سرگرم ہو گیا۔ قبضہ مافیا نے کراچی کے بلڈرز کی ناک پہ دم کر دیا۔ کراچی میں زمینوں پر قبضے کے معاملے نے بلڈرز کو پریشان کر دیا۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کے وفد کی DIG ویس ناصر آفتاب سے ملاقات ہوئی۔ منگو پیر اور سرجانی ٹاؤن میں زمینوں پر قبضے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وفد نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ گفتگو میں کہا کہ قبضہ مافیا نے کام کرنا مشکل کر دیا ہے، آئے روز کہیں نہ کہیں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آباد کی قانونی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، جس سے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ DIG ویس ناصر آفتاب کی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی میں زمینوں پر قبضے کے معاملے نے بلڈرز کو پریشان کر دیا۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کے وفد کی DIG ویس زون ناصر آفتاب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں منگو پیر اور سرجانی ٹاؤن میں زمینوں پر قبضے سے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔ وفد نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ گفتگو میں کہا کہ قبضہ مافیا نے شہر کراچی میں کام کرنا مشکل کر دیا، آئے روز کہیں نہ کہیں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آباد کی قانونی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، جس سے کام میں بے پناہ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ DIG ویسٹ زون کی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ بڑے افسوس کے ساتھ آج کہہ رہے ہیں کہ نسلہ ٹاور کے مالک عبدالقادر کاٹلیے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک الاٹی اس میں جو رہائش پذیر تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ وہ کیس ہے جو سو موٹو میں اٹھایا گیا تھا اور ایک نالے پہ بلڈنگ تھی، اور الٹیمیٹلی جو فیصلہ آیا تھا اس میں نالے کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور پھر کہا گیا کہ 780 گز زمین آپ کی لیز ہے اور باقی الاٹمنٹ ہے، جو لیز نہیں ہے الاٹمنٹ ہے اس کو آپ نے انکروچمنٹ ڈکلیئر کیا، جس کی وجہ سے اس بلڈنگ کو توڑ دیا گیا، اور جو 5 سال سے رہائش پذیر لوگ تھے وہ سب افیکٹ ہو گئے اس سے، اور ان کو باہر نکال کے ایک
अलमिया था बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री में कि इस तरीके से लोगों को निकाल के हमने बाहर निकाल दिया और उसको बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, जबकि ऐसे ही बहुत सारे केसेस थे जिसमें हमने रेगुलाइजेशन किया है। जो 341 का ज़मीन इसकी पेंडिंग थी, मतलब जिस पे आपने इंक्रोचमेंट कहा, वो हाई कोर्ट में एक केस में KMC और सिंधी मुस्लिम में पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो लीज़ नहीं हो रही थी। और 21 साल से वो केस था जिसमें ऑर्डर हो गया है कि वो ज़मीन सिंधी मुस्लिम को लीज़ कर दी जाए। तो अगर वो लीज़ हो जाती है तो वो मसाइल हल हो जाते हैं। मैं जुडिशरी से अपील करूँगा कि खुदारा ये देखें कि इन 5 साल से रहते हुए लोगों को अचानक निकाल के तोड़ देना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसको रिव्यू किया जाए, इस केस को देखा जाए दोबारा। और अब कुछ बात करेंगे एंटी करप्शन के छापे की। आपको बताएं कि एंटी करप्शन ई जोन का बल्दिया कोरंगी के महकमा ट्रेड लाइसेंस के दफ्तर पर छापा। जाली ट्रेड लाइसेंस की इजाफी वसूलियां, प्राइवेट अफराद को जाली सरकारी इंस्पेक्टर के कार्ड के इजरा का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन की छापामार टीम ने तमाम रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। तहकीकात के बाद मुलव्विस अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एंटी करप्शन ई जोन का बल्दिया कोरंगी के महकमा ट्रेड लाइसेंस के दफ्तर पर छापा। जाली ट्रेड लाइसेंस की इजाफी वसूलियां, इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार पीरजादा, मजीद क्या मालूमात हासिल हो सकी है? बिल्कुल, एंटी करप्शन ईस्ट की टीम जो है वो कोरंगी बल्दिया के जो हवाला है, बल्दिया के जो ऑफिस है, इसके में करप्शन की बेशुमार कहानियां हैं जिसके ऊपर तहकीकात कर रही है। आज जो एक मेन चीज सामने आई है करप्शन के हवाले से, बल्दिया के दफ्तर के अंदर जो ट्रेड लाइसेंस का जो ऑफिस है, इसके अंदर जो एंटी करप्शन हुक्काम है, उसके अंदर आज जो छापा उन्होंने मारा, उसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर थे और दीगर एहलकार थे जिन्होंने रिकॉर्ड कब्जे में लिया। इब्तिदाई तौर पर जो तहकीकात हुई उसमें उनका ये कहना था कि बल्दिया कोरंगी के ट्रेड लाइसेंस का जो अफसरान है, इन्होंने बड़ी तादाद में जाली अफसरान भर्ती किए हुए हैं, मतलब जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ अपनी जाती वसूलियों के लिए पूरे कोरंगी से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से वसूलियों के लिए इन्होंने इंस्पेक्टर, क्लर्क नाम के लोगों को भर्ती किया हुआ है। उनको ना सिर्फ कार्ड बना के दिए हुए हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके ट्रेड लाइसेंस के नाम पर वसूलियां करते हैं, बना कर देते हैं। और बेशुमार जो है वो चीजें सामने आई हैं। करोड़ों रुपए की करप्शन है। इस हवाले से एंटी करप्शन जराये का ये कहना है कि तहकीकात की जा रही है और बहुत जल्द इस बल्दिया कोरंगी के अफसरान, इसमें कुछ साबिक अफसरान हैं और कुछ मौजूदा अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा में तफसीलात बता रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़मुबाद मल्टी चौक और इंक्वायरी के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दुकानों और होटलों पर रखे गए केबिन में से तख्त, लोहे के स्टॉल जब्त कर लिए गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके नाज़मुबाद मल्टी चौक और इंक्वायरी ऑफिस के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दुकानों और होटलों पर रखे गए केबिन, मेज़े, तख्त, लोहे के स्टॉल जब्त कर लिए गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि सड़कों पर कायम तजावुजात का खात्मा, कार्रवाइयों के दौरान ठेले, पथारे, केबिन और स्टॉल्स भी जब्त कर लिए गए हैं। कराची के इलाके नाज़मुबाद मल्टी चौक और इंक्वायरी ऑफिस के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के हवाले से आपको मजीद बताएं कि दुकानों और होटलों पर रखे गए केबिन, मेज़े, तख्त, लोहे के स्टॉल जब्त कर लिए गए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी से। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। सर, बताइएगा शहर कराची के कौन कौन से मकामात पर ऑपरेशन किया गया है और इस वक्त कौन कौन से मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है? जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज सुबह से ही जो है हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है 3 ऑपरेशन हमारे जारी थे, जो हमने दोपहर के टाइम पे आज सुबह किए हैं। और उसके अंदर जो है हमारा बड़ा ऑपरेशन जो हमने किया है वो लियाकताबाद में ऑपरेशन किया था, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जिसमें हमने वहां पर 6 दुकानें जो फुटपाथ के ऊपर बनाई गई थी उनको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी जो है एक हमारी सोल्जर बाजार नंबर 2 में जो है कचरा कुंडी पर जो है वो कब्जा किया जा रहा था, उसको मुकम्मल साफ से, बहुत बड़ी कचरा कुंडी है सोल्जर बाजार नंबर 2 पे, उसको
वहाँ गुजार को राय और कब्जा माफी से उसको छुड़ाया। बिल्कुल इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हमारा जो साउथ है वहां पर ईगल चौक के अतराफ में भी बड़ी कार्रवाई की और वहां पर जो है बड़ा ऑपरेशन किया और वहां पर भी जितने भी तजावजात उनका खत्म किया। और अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मल्टी चौक और इंक्वायरी ऑफिस पे जो है नाजमाबाद में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में जो होटलिंग का सामान था, नाइट होल्डिंग, जो फुटपाथ और सर्विस रोड पे उन्होंने रखे हुआ था सामान, वो तमाम का तमाम सामान जब्त किया गया है। और इस वक्त 2 अफराद उनमें से हिरासत में भी ली गया जिन्होंने कार्य सरकार में मजामत की थी। उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च करवा दी गई है, उनको गिरफ्तार कर दिया है। सुबह इंशाअल्लाह ताला मुंतकिल कर दिया जाएगा। बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिला बस्ती में लियाकताबाद नंबर 9 और 10 भूरे खान वाली गली में फुटपाथ पर बनाई गई 6 दुकानों को मुकम्मल मस्मार कर दिया गया। दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, दीवारें, सनशेड्स, फर्श और दीगर पक्की तजावजात को भारी मशीनरी से मस्मार किया गया। जिला शर्की में सोल्जर बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, दीवारें, सनशेड्स और फुटपाथ पर बनाया गया चाय का होटल मस्मार किया गया। सोल्जर बाजार नंबर 2 पर सोल्जर बाजार की सबसे बड़ी कचरा कुंडी को पहले मुकम्मल सफाई की, उसके बाद चारों अतराफ दीवारें बनाई जा रही थी, जिसे कब्जा माफिया से वागुजार करा लिया गया और तमाम बाउंड्रीज मस्मार कर दी गयी। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर जमशेद डिवीजन अमीन लाखानी ने अमले के हमराह की। जिला जुनूबी में सदर रीगल चौक के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में दुकानों के सामने रखे मुख्तलिफ किस्म के तजावजात, केबिन, ठेले, पथारे, मुख्तलिफ स्टॉल और दीगर तजावजात जब्त कर ली गयी। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ मजहर शेख, डिप्टी डायरेक्टर नौमान अहमद ने की। तमाम कार्रवाइयाँ सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की निगरानी में की गयी। उनका कहना था कि तजावजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट में बेक वक्त कार्रवाई की है। सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर लियाकताबाद नंबर 9 और लियाकताबाद नंबर 10 भूरे खान वाली गली के अंदर जो फुटपाथ पे तकरीबन 6 दुकानें बनाई गई थी, उन्हें मुकम्मल तौर पे मस्मार कर दी गई और दीगर दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, गैलरिया, सनशेड, फर्श और दीगर पक्की जितनी भी तजावजात थी उन सबको मस्मार कर दी गई और मुख्तलिफ किस्म का सामान जब्त कर लिया गया। दूसरी हमारी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ईस्ट है उसमें की गई है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आज चौथे रोज भी सोल्जर बाजार में हमारी कार्रवाई हुई। वहां पर फुटपाथ पे जो चाय का होटल बना दिया गया था उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया गया और दीगर दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, गैलरियां, सीढ़ियां, सनशेड को मस्मार किया और मुख्तलिफ किस्म का सामान भी वहां पर जब्त किया गया। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स, सिटी वार्डन के इलेक्ट्रिक, सुइसर्जन गैस और ऑफिसर्स और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद थे। और अब कुछ बात करेंगे कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से। आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल का नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गार्डन में नादहिंदगान बिल्डर्स के पानी के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए, पानी की मोटर्स और सैकड़ों फुट पाइप भी जब्त कर लिया गया। MD वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान कहते हैं कि नादहिंदगान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज की जाएगी। गार्डन के इलाके में नादहिंदगान बिल्डर्स ने NOC की मद में 25% का चालान जमा करवाकर गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन लगा दिए थे, जबकि 75% रकम के नादहिंदगान थे। तमाम गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके मोटर्स और पाइप जब्त कर लिए गए हैं। इस मौके पर सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि नादहिंदगान और शहरियों के हिस्से का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी करते हुए इनको कानून की गिरफ्त में लाकर इनके गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएं। दूसरी जानिब MD वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि नादहिंदगान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उनका मजीद कहना था कि नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज की जाएगी।
اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں محمد علی شہید سوسائٹی میں رفائی پلاٹس اور گلیوں کو فروخت کرنے کا کیس۔ محمد علی شہید سوسائٹی میں رفائی پلاٹس کی فروخت تیزی سے جاری، درخواست گزار کا موقف۔ عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس کو نوٹسز جاری کر دیے، جبکہ فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب بھی طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں محمد علی شہید سوسائٹی میں رفائی پلاٹس اور گلیوں کو فروخت کرنے کا کیس۔ محمد علی شہید سوسائٹی میں رفائی پلاٹس کی فروخت تیزی سے جاری ہے۔ عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس کو نوٹسز جاری کر دیے، فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے ہی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک آئی میں غیر قانونی پورشنز کی تعمیرات کا کیس۔ عدالت نے پلاٹ نمبر سی 140 پر فوری ایکشن کا حکم دے دیا۔ ایس بی سی اے مذکورہ پلاٹ پر پورشنز کے خلاف فوری کارروائی کرے، عدالت کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک آئی میں غیر قانونی پورشنز کی تعمیرات کا کیس۔ عدالت نے پلاٹ نمبر سی 140 پر فوری ایکشن کا حکم دے دیا۔ ایس بی سی اے مذکورہ پلاٹ پر پورشنز کے خلاف فوری کارروائی کرے، عدالت کا حکم۔ بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کی ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کے ڈی اے اسکیم 36 بلاک 40B میں ہاؤسنگ پروجیکٹ پر قبضے کے خلاف درخواست۔ 15 سال سے ہمیں پلاٹ کا قبضہ نہیں دیا جا رہا، ہم نے اپنی جمع پونجی لگا کر یہ پلاٹ خریدے تھے، درخواست گزار کا موقف۔ عدالت کا ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کو نوٹس، 4 ہفتوں کے اندر جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کے ڈی اے اسکیم 36 بلاک 40B میں ہاؤسنگ پروجیکٹ پر قبضے کے خلاف درخواست۔ 15 سال سے ہمیں پلاٹ کا قبضہ نہیں دیا جا رہا، ہم نے اپنی جمع پونجی لگا کر یہ پلاٹس خریدے تھے، درخواست گزار کا موقف۔ عدالت کا ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کو نوٹس، 4 ہفتوں کے اندر جواب طلب کر لیا۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ شب برات سے قبل کراچی کے قبرستانوں کی صفائی ستھرائی تاحال شروع نہ ہو سکی۔ بلدیہ ملیر کے قبرستان کی ابتر صورتحال برقرار ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد کے قبرستان میں کچرے کا راج برقرار، قبرستان میں جھاڑیوں کی کٹائی بھی نہ ہو سکی۔ پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے زائرین پریشان ہو گئے۔ شب برات سے قبل قبرستانوں کی ابتر صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ شب برات سے قبل قبرستانوں کی صفائی ستھرائی شروع نہ ہو سکی۔ بلدیہ ملیر کے قبرستان کی ابتر صورتحال برقرار، ملیر سعود آباد قبرستان میں کچرے کا راج، قبرستان میں جھاڑیوں کی کٹائی بھی نہ ہو سکی۔ پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے زائرین پریشان ہو گئے۔ شب برات سے قبل قبرستان کی ابتر صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بھائی یہ سعود آباد قبرستان ہے، یہاں پہ صفائی کے حوالے سے کوئی صفائی نہیں ہے، نہ یہاں کوئی انتظامیہ صفائی کا کچھ رکھتی ہے رول۔ اس کا شبرات آ گئی ہے، کچرا آپ دیکھیں کس طریقے کا پڑا ہوا ہے۔ کے ایم سی کی جانب سے اب تک کوئی صفائی ستھرائی کے لیے نہیں آیا ہے، مطلب نا یہ تو ہم اپنے جانب سے کر لیتے ہیں، اپنا جو بھی ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں۔ گیٹ کی، پچھلے گیٹ کی نا بیچ درمیان میں جو حصے ہیں مزاروں کے، ان کے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا اور نہ کوئی اندر سے کر، اندر جو ہم ہی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، سمجھے میرے بھائی۔ اندر ویسے کوئی کے ایم سی کا عملہ نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ بھائی لیبر آ رہی ہے کام کرے گی، کوئی لیبر نے کام نہیں کیا۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے شہر کراچی کے یاسین آباد قبرستان کا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے رہائشی اور تجارتی علاقوں کے بعد قبرستان بھی سیوریج کے مسائل کی لپیٹ میں آ گئے۔ یاسین آباد قبرستان کے سامنے کئی فٹ سیوریج کا گندا پانی جمع ہو گیا۔ عوام کو اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری گندے پانی سے گزر کر یاسین آباد قبرستان جانے پر مجبور ہیں، جبکہ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کئی بار درخواست دی گئی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وزیر بلدیات سندھ لانگ مارچ چھوڑ کر عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں۔
कराची में कब्रिस्तान के सामने पानी खड़ा रहना सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगा। कुछ रोज कबल लियारी में जनाजे को सीवरेज के पानी से गुजरने की फुटेज सामने आने के बावजूद सिंध हुकूमत गफलत की नींद से ना जाग सकी। अजीजाबाद में कब्रिस्तान के सामने सीवरेज के पानी ने यहाँ के मकीनों को मुश्किलात में डाल रखा है। सीवरेज के पानी ने यहाँ के मकीनों को मुश्किलात में डाल रखा है। शहरियों को अपने प्यारों की कब्रों तक जाने के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। पास में मौजूद मस्जिद के सामने भी गंदा पानी नमाजियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है, मगर वाटर बोर्ड के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। ये रोज का ये बाकी पैसे खाते हैं ये सारे एमएनए और हमारे एमपीए वगैरह आते हैं, एक दफा डालते हैं और चले जाते हैं। जैसे फिक्सेड वाले हैं वैसी है, सारा इदारा ऐसी है। यहाँ का हमारा सेवरेज बोर्ड वाला इदारा ऐसी है जो अभी 2-3 दिन पहले आए थे, उन्होंने गटर खोले, सारे दिखावा किया कि हमने सफाई की और आगे से सारे गटरों के जो पाइप हैं वो सब फाड़ दिए। इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज को अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि कई बार दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हर 2 महीने बाद इसका इशू होता है, हर 2 महीने बाद कभी भी सही नहीं हुआ। लोग परेशान होते हैं कब्रिस्तान आने के लिए। अभी जुम्मे की नमाज होगी, आप आके देखना, नमाजी भी परेशान होंगे, आने जाने वाले वो तमाम परेशान है। ये इसका हल हो ही नहीं रहा। कंप्लेन कर करके आवाम परेशान हो गई। कल भी आई थी एक मीडिया, वही बात कर गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। इधर कंप्लेन इन्होंने काफ़ी करी है लेकिन इसका कोई हल नहीं हो रहा और लोग रास्ते में आते जाते कब्रिस्तान में बहुत परेशान हो रहे हैं और पकीज़ा जगह इधर लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, तो इस वजह से इनसे अपील है कि इसका कुछ करें। मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया कि लॉन्ग मार्च छोड़कर आवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला हैदराबाद शुएब मलिक कहते हैं कि हैदराबाद, कासमाबाद और कोटरी में जदीद तर्ज पर निज़ाम मुंतकिल करने का आगाज़ हो गया है और ये मुतबातिर अमल जारी रहेगा। अवाम मसाइल का हल करना हमारी तरजीह है। हैदराबाद, कासमाबाद और कोटरी में सफाई मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला हैदराबाद शुएब मलिक का कहना था कि SSWMB GTS से कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाने का काम पिछले चंद माह से अंजाम दे रहा है, जबकि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कोऑर्डिनेशन से इलाकों से कचरा उठाने के काम का आगाज भी कर दिया गया है। इस सिलसिले में SSWMB ने हैदराबाद के लिए 20 ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 लोडर, कासमाबाद के लिए 8 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 लोडर, कोटरी के लिए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर फराहम किए हैं, जबकि सफाई मुहिम के दौरान बरसों पुराना कचरा जो हैदराबाद में जगह जगह डंप है वो भी साफ किया जाएगा। हैदराबाद को साफ रखने के लिए बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद कहा कि हैदराबाद, कासमाबाद और कोटरी में जदीद तर्ज पर निज़ाम मुंतकिल करने का आगाज हो गया है और मुतबातिर ये अमल जारी रहेगा। अवामी मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा मसाइल कचरे के हैं जो कि अब हल होना शुरू हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीम हैदराबाद में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कासमाबाद हातिम मल्ला, एडमिनिस्ट्रेटर कोटरी जावेद जतोई, म्यूनिसिपल कमिश्नर फाकिर शाकिर, SWMB लतीफाबाद फवाद और इलाके के मौज़िज़ीन भी शरीक थे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि जिला शर्की में सड़कों के नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए मरहलावार बेहतरी लाने की कोशिश में मसरूफ हैं। अमीर खुसरो रोड, UC 12 और किडनी हिल पार्क के अतराफ सड़कों की अस्तरकारी के काम के मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि इलाकों की सूरत हाल बेहतर बनाने के साथ साथ सड़कों के नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। मयारी तरक्याती कामों के जरिए आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। उनका मजीद कहना था कि रवा माली साल में इलाकों की सूरत हाल बेहतर बनाने के साथ सड़कों की दुरुस्तगी के काम भी किए जा रहे हैं, जबकि कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरक्याती कामों के जरिए आवाम को सहूलियात पहुंचाई जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि तरक्याती कामों को अज खुद भी मुआयना करें और तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और पैमाइश की जांच पड़ताल करें। जिला शर्की में ऐसे तरक्याती काम सर अंजाम देना चाहते हैं जिससे आवाम तवील अरसे तक मुस्तफीज हो। इस मौके पर सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर B&R सलमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद मल्ला, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद फैयाज भी मौजूद थे।
म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा है कि बल्दिया मलीर की तमाम मैटरनिटी होम, डिस्पेंसरीज और अस्पतालों में फराहम सहूलियात पर भरपूर नज़र रखे हुए हैं ताकि आवाम को इलाज की गर्ज से बल्दिया मलीर से बाहर ना जाना पड़े। यूसी की सतह पर आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मकसद आवाम का मायार ज़िंदगी बुलंद करना है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख ने आंसू गोट मैटरनिटी होम में फराहम तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहिर मलिक, डॉक्टर सलमा मुगल, डॉक्टर फरहल नाज और दीगर भी मौजूद थे। दौरे के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मैटरनिटी होम में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और अफसरान को आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत दी। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख का कहना था कि आवाम को बल्दिया मलीर के तमाम अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर सतह पर भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दो डॉक्टर दिए हुए हैं और एसीयू के ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट को हमने वर्बली भी बोला हुआ है और लेटर भी लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इसका भी ये फुकदान ये ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर की जो ये शार्टेज है ये भी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। प्रेजेंट जो ये पोजीशन है नाइट में है नहीं, इनके जो ये सुपरवाइज़र है वो इनको टैकल कर रहे हैं, तो इस पर मैंने नोटिस भी लिया हुआ है, बोला भी है और इंशाल्लाह कोशिश करके सिंध गवर्नमेंट के DHO को भी बोलेंगे तो नाइट के लिए कोई हमें डॉक्टर दे दें, नहीं तो SUG के लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब को पर्सनल रिक्वेस्ट की है, इन रिटन भी लिखा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह डॉक्टर जैसे होंगे शार्टेज है आजकल तो इंशाल्लाह वो भी इनको प्रोवाइड करेंगे। दौरे के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर ने चीफ मेडिकल ऑफिसर को हिदायत दी कि आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं और आंसूगोट मैटरनिटी होम में एक मुस्तकिल डॉक्टर रात के औकात में मुकर्रर किया जाए ताकि आवाम को रात के औकात में भी तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवर ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी दिलचस्पी सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की काविशों से बल्दिया कोरंगी में मुतादिद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं जबकि बेशतर पर तकमीली काम जारी है। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी है। तरक्याती कामों के मुआयने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवर रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कामों की रफ्तार और अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेते दिखाई देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवर का मुख्तलिफ इलाकों के ताबड़तोड़ दौरे के मौके पर कहना था कि बल्दिया कोरंगी में जारी मंसूबे आखिरी मराहिल में है। कोरंगी में जारी मंसूबों की तकमील के बाद काफी हद तक मसाइल कम हो जाएंगे। आज हमारा बेसिकली जो विजिट है वो खुसूसन 15 शोबान के हवाले से, ताकि मसाजिद जितनी भी हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में उनके अतराफ में जो भी सफाई सुथराई का काम है वो कराया जाए और कब्रिस्तानों में भी सफाई का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं हमारा स्टाफ जो है ना राउंड द क्लॉक काम कर रहा है और स्ट्रीट लाइट के हवाले से भी और पेविंग ब्लॉक्स के भी हवाले से भी अभी आपने देखा चक्रा गोट में हमारा काम चल रहा है। कल मुझे कंप्लेन मिली थी कोरंगी नंबर 1 के कब्रिस्तान की, तो फ़ौरन मैंने स्टाफ भेज दिया था, जितना हमसे हो सकता था हमने वो सफाई वहाँ पे करवाई है और इनको वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को भी बता दिया है कि बेसिकली वो सेवरेज लाइन की प्रॉब्लम है तो वो उसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द सही कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि आवाम की खिदमत करना हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझते हैं। जितने वसाइल हैं उनको बुरोए कार लाकर आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा हैं। उनका मजीद कहना था कि बल्दिया कोरंगी में अब पार्कों की तामीर और मुरम्मत के साथ साथ पेवर ब्लॉक, गलियों और अंदरूनी सड़कों के पीच वर्क के हवाले से कामों को अंजाम दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, जबकि तालीम और सेहत के मराकज़ को आला सतह पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश बरोए कार लाएंगे। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर B&R सलमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R इकबाल अहमद मल्ला, डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली, डायरेक्टर तौकीर अब्बास आगा समीर के हमरा एलिमेंट्री बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल बलोच कॉलोनी के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने अफसरान को हिदायत की कि वो स्कूल में मौजूद इमारती स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए इकदाम बरोए कार लाएँ। उनका मजीद कहना था कि मरहलावार स्कूलों और तिब्बी मराकज़ की हालत को बेहतर बनाकर ज़िला शर्की के मकीनों को बेहतरीन तिब्बी और तालीमी मराकज़ फराहम करेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली ने उन्हें बल्दिया शर्की के स्कूलों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि बल्दिया शर्की के कुछ स्कूल मायार के लिहाज से बेहतरीन स्कूल शुमार किए जाते हैं, जबकि कोशिश कर रहे हैं कि दीगर स्कूलों को भी मयारी तालीम के हवाले से बेहतरी की जानिब गामजन किया जाए।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा है कि तिब्बी मराकज़ में सहूलियात की फराहमी बिला तात्तुल जारी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख की ज़ेर सदारत महकमा जाती अफसरान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बल्दिया मलीर के ज़ेर इंतज़ाम डिस्पेंसरीज स्कूल्स में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान महकमा तालीम और महकमा सेहत के अफसरान ने स्कूल्स और तिब्बी मराकज़ में मौजूद सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरका ने स्कूल्स और तिब्बी मराकज़ की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा कि डिस्पेंसरीज में तिब्बी सहूलियात के इजाफे के लिए कोशिश हैं, मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। जी डिस्पेंसरी हमारी आंसू गेट में डिस्पेंसरी है, टोटल हमारी 9 डिस्पेंसरी है। कल इंशाल्लाह हम इसकी विजिट करेंगे, एक आंसू वार्ड और दूसरी खोखरा पार्क में। इंशाल्लाह इस पे जो भी इनकी मसले मसाइल होंगे इनको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करेंगे। मेडिसिन के हवाले से होगा, स्टाफ के हवाले से होगा। कल इंशाल्लाह हम सरप्राइज विजिट करेंगे। हाँ, स्कूलों में भी जो हमारे स्टाफ के हवाले से हमारे ऑलरेडी डायरेक्टर साहब उनको देख रहे हैं। थोड़ी 1-2 कंप्लेन हैं, उसके लिए भी हम जाएंगे। और कुछ स्कूल हमारे 1-2 हैं वो ज़बून हालत में हैं, उनको भी हम विज़िट करेंगे। और कोई इंकरेजमेंट के भी हवाले से 1-2 स्कूलों की हाई कोर्ट से भी आया है, वो भी इशू हैं। ये सब इंशाल्लाह कल परसों हम विज़िट करके इनको सॉर्ट आउट करेंगे इनके मसले। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने अफसरान को हिदायत दी कि सड़कों और पार्कों की बहाली के लिए वसाइल में रहते हुए जो अमूर अंजाम दिए जा सकते हैं उन्हें मुकम्मल करने में कोई कसर न छोड़ी जाए, ताकि यूसी सतह पर अवाम बल्दियाती सहूलियात से मुस्तफीज हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि ज़िला शर्की के दोनों जोन्स में तरक्याती कामों के जरिए इलाकों की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज़ भुट्टो, सीनियर डायरेक्टर तौकीर अब्बास के हमरा जमशेद जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि ज़िला शर्की के दोनों जोन्स में तरक्याती कामों के जरिए इलाकों की सूरत हाल में बेहतरी लाई जा रही है। इलाकों में गलियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स, पार्कों की बेहतरी, ग्रीन बेल्ट्स और चौराहों को भी बेहतरी की जानिब गामजन किया जा रहा है। दस्तयाब वसाइल में रहते हुए इलाकों के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को दूर करके अवाम को सहूलियात पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने PECHS एक्सटेंशन में पेवर ब्लॉक्स की मदद से इलाकों को पुख्ता करने के काम का मुआयना किया, जबकि पेवर ब्लॉक्स का मयार भी चेक किया। चनेसर गोट, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, कराची एडमिन सोसाइटी और मलहका इलाकों के दौरे के दौरान मौजूद बल्दियाती मसाइल का जायजा लेने के बाद उनके हल की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर मज़कूरा इलाका मकीनों की जानिब से इलाके की सूरत हाल बेहतर बनाने पर बल्दिया शर्की की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और अफसरान को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा किया। दौरे के दौरान उनके हमरा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदीम जैदी, नदीम शेख, सलीम फारूकी और मोहम्मद हारून भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची के इलाके नाज़माबाद का अंडर बाईपास तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मारूफ शायर मोहसिन भोपाली के नाम से मंसूब नाज़माबाद अंडर बाईपास तबाहाली का शिकार है। धूल मिट्टी गड़े अंडरपास की पहचान बन गए, जबकि मुसाफिरों का नाज़माबाद अंडरपास से गुजरना कड़ा इम्तहान बन गया। गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। शहरियों का हाथ जोड़कर शहर की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। नाज़माबाद का मोहसिन भोपाली अंडरपास, जो ट्रैफिक की रवानी और शहरियों को सफरी ही सहूलियात फराहम करने के लिए तामीर किया गया था, लेकिन अब ये अंडर बाईपास शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनता जा रहा है। सीएम साहब भाई खुदा का खूब करो, ये रोडों का हाल देखो। शहरियों का कहना था कि सड़कों की सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि ट्रैफिक की रवानी से सड़कों पर धूल उड़ती है, जिससे शहरियों में सांस की बीमारियां फैल रही हैं। 4 व्हीलर में भी होता तो बुरा हाल हो जाता। मेरी गाड़ी जो 1 साल चलने वाली होती, 1-1.5-2 साल चलने वाली होती है, 6-7 महीने में जवाब दे बॉस। ऐसा हाल है इनका।
دیکھو اس کا 2-4-6 مہینے ہو گئے اس کو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بالکل جو ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھو یہ دھواں اڑ رہا ہے, کوئی جو ہے نا ادھر سے گزر بھی نہیں. ہم روز ادھر سے آتے جاتے ہیں, یقین کرے کوئی اگر گھر پہنچتے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے کہ کون آیا بندہ. یقین کرے اتنا وہ گرد وغیرہ ہے کہ آپ کو بتانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کام شروع ہے ابھی تک جو ہے نا اس کا کام ہی نہیں پورا ہو رہا. سی ایم صاحب بھائی خدا کا خوب کرو, یہ روڈوں کا حل دیکھو, اس سے ہم بہت پریشان ہیں یار. ادھر سے روز کا گزرنا ہوتا ہے, ہمارا کو گھر جا کے پہچان نہیں ہوتا ہے. یہ کب بنے گا یار؟ محسن بھوپالی انڈر بائی پاس خستہ حال ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے, مگر سندھ حکومت سمیت متعلقہ محکمے عوامی مسائل کے بجائے عوامی مارچ میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز ایک بار پھر بنا عوام کی آواز. میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ کو بالآخر ہوش آ ہی گیا. ملیر بکرا پیڑی میں نالے کی تعمیر کے لیے کھودی گئی سڑک کی بھرائی کر دی گئی, جبکہ بند سڑک کو بھرائی کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. علاقہ مکینوں کا میٹرو ون نیوز کے ساتھ اظہار تشکر, سڑک کی فوری استرکاری کا مطالبہ کر دیا. میٹرو ون نیوز بنا ایک بار پھر عوام کی آواز. کراچی کے علاقے ملیر 15 بکرا پیڑی میں نالے کی تعمیر کے لیے سڑک کھود کر ٹریفک کے لیے بند کرنے کی خبر میٹرو ون نیوز نے کچھ دن قبل چلا کر انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا چہرہ عوام کو دکھایا. میٹرو ون نیوز کی خبر پر انتظامیہ جاگ اٹھی. فوری طور پر سڑک پر مٹی ڈال کر سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. سڑک کھلنے سے علاقہ مکین اور دکانداروں نے میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میٹرو ون نیوز کی آواز نے بے حس انتظامیہ کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا میٹرو چینل کا آپ کا, کہ جو آپ لوگوں نے چند دن پہلے یہاں پر آ کر یہاں پر جو مسائل تھے, یہ پورا علاقہ کھدا ہوا تھا, یہ سائیڈ ہماری بند تھی, یہاں ملبہ تھا اور بہت سلو کام ہو رہا تھا. اور آپ لوگوں کی خبر چلنے کے بعد کم از کم اتنا ہوا کہ ارباب اختیار خواب خرگوش کے مزے جو لوٹ رہے تھے وہ جاگے اور انہوں نے اس کام کو تیز کیا. دکانداروں کا مزید کہنا تھا کہ کئی عرصہ گزرنے کے باوجود نہ نالا بنایا گیا نہ ہی سڑک کی تعمیر کی جا رہی تھی, جس کے باعث یہاں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا. بھائی سب سے پہلے جو نا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو کا. میٹرو نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے چینل نہیں کرتے, صحیح ہے نا. سب سے پہلے کراچی تحصیل میں پیش کرتا ہوں میٹرو ون کا, اور یہ ہمارا سمجھ لو دل کی آواز ہے میٹرو. اور ہم نے جو لاسٹ ٹائم جو ہم نے شکایت کری تھی مطلب چینل کے ذریعے, چینل کے تھرو, اور اس کو دیکھتے ہوئے شاید ارباب اختیار نے جو نا یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کام ذرا تیزی پکڑ لی. اس کے بعد جو نا ہمارا راستہ کھل گیا اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارا کاروبار جو بند تھا بالکل, ہم لوگ جو نا بند گلی کے اندر گھس گئے تھے, اس سے ہم باہر آ گئے. اس سے ہم بہت خوش ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پہلے بھی یہاں تشریف لائے اور آج کام کچھ ہونے کے بعد دوبارہ آپ تشریف لائے, تو یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک نیک شگون بات ہے. اور یہ کچھ کام تو ہو گیا ہے, مٹی وغیرہ جو ہے کافی حد تک یہاں سے اٹھا لی گئی ہے, لیکن روڈ کا ابھی تک کام جو ہے نا وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے ارباب اختیار ہیں وہ آج کل جو ہے وہ مارچ میں چلے گئے ہیں اسلام آباد. علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے مطالبہ کیا کہ نالے اور سڑک کی تعمیر کے کاموں کو فوری مکمل کرائیں تاکہ ہمیں آمد و رفت میں آسانی ہو. میٹرو ون نیوز کی خبر پر یونس چورنگی فلائی اوور کی قسمت جاگ اٹھی. خستہ حال یونس چورنگی فلائی اوور کے مرمتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا. عوام نے شہری مسائل کی نشاندہی پر میٹرو ون نیوز کی کاوشوں کو سراہا. کراچی کے علاقے ملیر یونس چورنگی فلائی اوور کی خستہ حالی پر بلدیاتی اداروں کو رحم آ گیا. میٹرو ون نیوز کی خبر پر یونس چورنگی فلائی اوور کی قسمت جاگ گئی. خستہ حال فلائی اوور کی تزئین و آرائش اور مرمتی کاموں کا ہنگامی بنیادوں پر آغاز ہو گیا. مسافروں نے شہری مسائل کی نشاندہی پر میٹرو ون نیوز کی کاوشوں کو خوب سراہا. کہا بلدیاتی ادارے اپنے فرائض منصبی اچھے سے نبھائیں تو شہر کی اجڑی ہوئی حالت بہتر ہو جائے. ہم تو روز آتے ہیں, ہمارا ریگولر آنا جانا ہے, لیکن اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کمپنی میں آنے سے ہمارے یہاں صرف اس لیٹ آنے سے ہماری سیلری کٹ جاتی ہے. ہاں یہ ریگولر کا کام تھا, اتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ تو میٹرو کی بڑی مہربانی ہے کہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.